Okay, so Mehran, can you please make sure that you are able to see the presentation and my voice is clear? यस सर स्क्रीन नजर आ रहा है. Okay, thank you. So, in last lecture, we talked about the compaction and we are done with that chapter. So, maybe you had some question related to the numerical, that was in those slides. We can discuss those. If you have confusion, you can send me an email. Okay. Anyways, uh, this is the new chapter, chapter 6, which is related to the soil permeability. So in today lecture, we will talk about what is soil permeability and why it's important. Then we will discuss briefly the Bernoulli's equation that you already have studied in fluid mechanics 1. Then there is a physics that is responsible for the seepage of water through the soil, and that is accounted by the Darcy's law, which is one of the very famous law that we use to study the permeability of soils. Then there is a concept of the hydraulic conductivity and the coefficient of permeability K. We will talk about that, and I will just show you the lab test because I believe that all of you have performed constant head and the falling head permeability test in soil mechanics lab before this COVID, situation. So we will also talk about the empirical relationship for the hydraulic conductivity, and we will try to solve some numerical examples. So, what is soil permeability? Actually, every one of you is, I think, very well aware about the soil phase relationship that the soil is a three-phase problem. So, there are solid and there are voids, and the voids can be either filled with air or water. So, a measure of soil ability to allow the flow of the water through its voids or the pores is basically known as the soil permeability. How does water flow through soil? As I already told you that, for example, if these are the solids, soil grains, as you can see these one, these this grain and this grain have some empty spaces which we call as a voids. So through those voids, soil may pass. This is an example of loose soil. This is an example of dense soil or the compacted soil. Anyways, water will pass through it. Okay. So the soils have the solid particle which has interconnected voids and that are responsible for the flow of the water. The second phenomena which is in fluid mechanics is about the head, the difference of the energy between 2 points. For example, if you see this point is higher than this point, so it is obvious that if you put any passing material pipe or like uh, uh, in this basic demonstration, the water will flow from A to B because of the head of the water. So it means in soils, water flow because of two basic phenomena. One is the head, and the second one is the voids. So water flow from high point energy to the lower energy point, and energy is dissipated in overcoming the soil resistance. So there is a head loss concept. I believe that you have studied the head loss concept in fluid mechanics 1. Anyways, this will be more clear when we will discuss the next slides. So if you see, this is loose soil. Loose soil means it has more void ratio, means the voids are more, which means more water can flow. And if water can easily flow, we call that as highly permeable soils. And loose soils are typically highly permeable soils. So dense soils, for example, because they are very closely packed, so you can see that water has difficulty to pass through it, and we call that as a low permeable soils. So it means that different soils have different permeability. We are not right now talking about clays and sands.
So just think about loose and dense. Okay. uh, s- Now let's talk about sand. That sand has more permeability than the clay. And why is that? Because the coarse grained soils, they allow water to pass easily, and we call that as a highly permeable. And you may have seen in your daily life, if you push your uh, I mean shoe or something over the sand, तो पानी फौरन ड्रेन हो जाता है. कभी आपने पाऊँ, अगर आप कभी जाएं किसी स्ट्रीम के ऊपर या किसी सी के ऊपर जहाँ पे सैंड और वाटर है, एंड इफ यू जस्ट प्लेस योर फुट ओवर दैट, तो पानी क्विकली ड्रेन हो जाएगा. क्योंकि वो कोर्स ग्रेन सॉइल है और वो हाईली परमेबल होती है. But if we talk about the fine grained soil, which are the clay, and you know the platelet structure, and there is a fabric of clay which we already discussed in our lecture 2 or 1, I think. So these are low permeable soils. So it means that from this slide I can conclude that, for example, if there is a sand, if there is a dense sand, loose sand, that can have different permeability. And if there is a clay and soil, definitely it will have a different permeability. We will talk in detail in our next slides. So permeability basically affect the rate of settlement under the applied load. So you may not be very much comfortable in understanding this line because we need to discuss chapter 7, chapter 8 of added stresses and 9 chapter of consolidation. Then you will be able to understand this line, because I haven't exposed you to the stress transformation and consolidation. So let's ignore this line for now. uh, Design of earth dam, this is very obvious. For example, you understand that there is a earth dam, the dam which has been constructed by the soil, by the rock, by the clay, by silt. There are different component, okay, and gravels. So you understand that if this is a dam, it has the upstream side, okay, and this is the low stream downstream side. So this is upstream, this is downstream. Okay, so you don't want water to basically seep from these the dam of the body. Okay, so it means ke design of the earth dam is basically the function of the permeability. So we select the material which is very very low permeable. So it may take maybe 100 years to pass water from upstream side to downstream through the body of the dam. So we have to select such a soil. So that's why the permeability is very, very important. Then the soil filters. For example, if there is any seepage, we will design this soil filter in chapter 7, sorry, of seepage analysis. Then it will be more clear. But I can tell you कि अगर हम ये डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर यहाँ पे ग्रेवल रख दें, तो जो ये पानी सीप करेगा थोड़ा बहुत, वो क्विकली ग्रेवल जो है ना उसको अपने अंदर यहाँ पे ड्रेन कर देगा. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू क्विकली ड्रेन एनीथिंग, वी नीड टू डिजाइन द फिल्टर्स. If we want, so there are many type of the filters. These will be more clear in chapter 7. The stability of slopes and earth retaining structure. फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रैवल करते हैं किसी हाईवे पे या रोड पे, तो आप देखते हैं कि एक रिटेनिंग वॉल्स बनी होती है. उन रिटेनिंग वॉल्स के पीछे सॉइल रिटेन की होती है उन्होंने. तो अगर वहां पे पीछे वो सॉइल हो जो बड़ी परमेबल हो, तो इसका मतलब है कि वॉल पे प्रेशर लगेगा. किस किस चीज का? बेसिकली सॉइल का भी और वाटर का भी, वो जो अलाउ करेगी, जो ड्रेन कर देगी. ठीक है, तो यू हैव टू डिजाइन such retaining walls keeping in view the soil pressure as well as the hydrostatic pressure of the water. Also the stability of the slope. We will study the slope stability in next semester in geotechnical engineering, and then I will explain you how important is the drained analysis and the undrained analysis. Drained analysis वो होता है जिसके अंदर हम पानी का जो है ना पोर वाटर प्रेशर को अलाउ करते हैं गुजरने का, और अनड्रेन के अंदर हम नहीं करते. ओके, वी विल टॉक. सो
here you just need to understand कि permeability is highly important in the construction of the earth dam. जो हम उसके लिए soil consider करेंगे, उसके अंदर जो filters design करेंगे, अगर हमें stability of slope, landslide, slope stability के issues resolve करने हैं, तो we must have the knowledge of the permeability. अगर earth retaining structure की हमने stability check करनी है. Then underground water flows. Okay. Suppose, for example, let's take an example of Lahore. So you understand that Lahore is having a lot of population और लोगों को पानी चाहिए. So the one of the source is a surface water कि वहाँ पे किसी केनाल के थ्रू या रिवर वाटर जो सरफेस वाटर है उसको हम क्या करें, ट्रीट करके लोगों को वाटर सप्लाई दें. द सेकंड वे इज कि लोग ग्राउंड वाटर पिए. फॉर एग्जांपल हम ट्यूबवेल लगा दें, तो जो ट्यूबवेल है वहां से हम कंटिन्यूसली वाटर पंप कर रहे हैं because we are using that. This is known as the depletion of water. Can you please make sure that your mic is on? Okay. So अब एक तो आप अपने घरों के अंदर लाहौर में जो पानी पंप आउट कर रहे हैं, ओके. सेकेंडली अब उस पानी का एक इक्विलिब्रियम भी चाहिए. आपने उस ग्राउंड को रिचार्ज करना है. ग्राउंड कैसे रिचार्ज हो सकता है कि जो रिवर रावी वहां से गुजर रहा है वहां से पानी परकुलेट करे, पानी अलाउ करे ग्राउंड के वो नीचे जाए. तो दूसरा वहां पे रेनफॉल हो सकता है, उस रेनफॉल से पानी नीचे अंडरग्राउंड जो बेसिकली एक्विफायर है, जो पानी का सोर्स है, वहां पे जा सकता है. तो पानी सरफेस से अंडरग्राउंड 100 फीट पे या 1000 फीट पे या 50 फीट पे कैसे जाएगा? थ्रू परमेबिलिटी कॉन्सेप्ट. यानी कि अगर उसे सॉइल अलाउ करेगी टू हैव, तो हमने अगर कहीं पे ग्राउंड वाटर स्टडीज करनी है तो वी रियली नीड टू हैव द concept of the water flows through the permeability of the soil or rock. Okay, so this is what meant by the underground water flows. Then wells and aquifer I सर already explained. Yes. सर ये परकुलेशन और परमेबिलिटी में डिफरेंस बताएं सर. I don't know, but I'm not basically a dictionary, okay? But I can tell you that permeability is basically the ability of the water to flow through any medium. But you can see in dictionary ke what is grammatical difference between percolation and permeability, okay? Is it clear now? Yes sir, yes sir. Okay, good. So then excavation system and dewatering. This is extremely interesting example. कि फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर ऑन अ साइट, आप किसी साइट के ऊपर हैं जहां पे आपने बेसमेंट प्लस एक बिल्डिंग बनानी है ये, और ये आपका ग्राउंड लेवल है. ओके, दिस इज योर ग्राउंड लेवल एंड दिस इज द प्रपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. अब यहाँ पे इशू क्या है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो यहाँ पे आ रहा है आपके बेसमेंट लेवल पे, तो आप तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. इसका मतलब है कि अगर आपने इस साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको ये ग्राउंड वाटर टेबल नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा. आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली पंप करना पड़ेगा पानी कि ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए 3-4 मीटर बिलो योर प्रपोज्ड डेप्थ ऑफ द प्रपोज लोकेशन ऑफ द बेसमेंट फाउंडेशन. तो इसको हम कहते हैं कि डिवाटरिंग ऑफ द एक्सकेवेशन सिस्टम. तो ये हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इससे अगला, उसके अंदर हम ये डिजाइन करेंगे एग्जांपल. सो दिस स्लाइड वाज बेसिकली टू एक्सप्लेन यू द फर्स्ट ऑफ ऑल के लूज और डेंस एंड क्ले और सैंड की कैसे परमेबिलिटी डिफरेंस है, एंड देन व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द परमेबिलिटी, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द परमेबिलिटी. ओके, any question related to this slide? All right, so let us move to the next slide. This is one of the example which I already explained you. There is a earth fill embankment dam. ये डैम सॉइल का बना है, ओके, या इसमें रॉक भी है, अगर कोर है रॉक एनीवेज. तो ये अपस्ट्रीम साइड है, ओके, and this is downstream side, and these blue lines basically show the seepage of the water. That water is passing through the voids inside this soil, okay. So this was that's why we need. अब हम यहाँ पे अगर इस डैम को बनाते हुए कोई हाईली परमेबल, हमने इस डैम को सैंड का बना दिया सपोज, तो व्हाट विल हैपन? all the water will seep through dam and we will not be able to, I mean, have a storage behind this dam, which is basically the
प्राइम पर्पस टू कंस्ट्रक्ट अ डैम। तो इसलिए जो मटेरियल की सिलेक्शन है डैम की कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो हाईली इम्पोर्टेंट है कि हमें परमेबिलिटी पता हो सॉइल की, क्ले की या सैंड की। ओके, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ये वो एग्जांपल है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई है कि यहाँ पे आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या कोई एक्सकेवेशन करना चाहते हैं, कोई बेसमेंट बनाना चाहते हैं आप, ठीक है, या कोई अंडरपास बनाना चाहते हैं, और आपका ग्राउंड वाटर टेबल ये आपकी प्रपोज डेप्थ है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं ये, लेकिन आपका ग्राउंड वाटर टेबल इससे ऊपर है। तो आप पानी में तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ना एक्सकेवेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वेल बनाना पड़ेगा, हमें पंप लगाने पड़ेंगे। हम फिर पंप डिजाइन करते हैं। उन पंप से जो ये ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल था, अब वो यहाँ पर चला गया। ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल ये नया लेवल है। तो ये कैसे लोअर करते हैं, इसकी क्या डिजाइन पैरामीटर होते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट this is a practical example के how the permeability is extremely important. So this is another example in which you can see के this is a river. ये एक रिवर बह है, ठीक है, और ये एक किनाल है, नहर है। ओके, अब ये एक दूसरे से 30 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है हॉरिजॉन्टली। तो जो सॉइल है वो क्ले है, और फिर उसके अंदर सैंडी सिल्टी सीम है, यानी कि एक बड़ी थिक लेयर है 0.5 मीटर की सैंड और सिल्ट की। अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, कौन बताएगा? शाबाश। हम कैनाल्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज वी वांट टू ट्रांसपोर्ट आवर वाटर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट हैविंग एनी लॉसेस। तो रिवर से हमने केनाल निकाली हुई है टेक्निकली, ठीक है, पीछे या डैम से केनाल आ रही है। तो ये जो केनाल का पानी है, फॉर एग्जांपल हमने तरबेला से केनाल लेके जानी है इस्लामाबाद की, टू फुलफिल द नीड ऑफ द वाटर। ओके, तो वी डोंट वांट दिस वाटर टू बी लूज। तो क्योंकि ये सैंड है, तो ये जो 0.5 मीटर की ये जो आपको नजर आ रही है सीम सी, ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है 0.5 मीटर का, इसके अंदर से हाईली परमेबल है ये सैंड। तो क्या होगा, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई है, वाटर कैन इजीली पास। तो ये जो केनाल है, जो हमें इसका रिक्वायर्ड डिस्चार्ज होगा इस्लामाबाद के अंदर, वो लूज हो जाएगा, वो पानी बह जाएगा दरिया के अंदर। इसलिए हमें जो केनाल की अलाइनमेंट है वो ऐसे डिजाइन करनी है कि वहां पे हमें लेस सैंडी या कोई ऐसा, या उसे हमने हाईली इम्परमेबल बनाना है, यानी कि जो इसकी लाइनिंग होगी, जो कनाल की बेस होगी, वो हमने इस तरह कंस्ट्रक्ट करनी है कि पानी ग्राउंड के अंदर परकुलेट ना करे, जो वो वर्ड उसने यूज किया है, या ग्राउंड के अंदर लॉस ना हो उसका। तो दिस इज अगेन द सब्जेक्ट ऑफ द परमेबिलिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक क्ले की थिक लेयर दे देते हैं 9 इंच की या 10 इंच की, तो हमने उसकी इतनी कंपेक्शन करनी है कि उसकी परमेबिलिटी बहुत लो हो जाए और पानी का लॉस ना हो। दिस इज आल्सो वन ऑफ द लाइनिंग, या हम कंक्रीट की लाइनिंग दे सकते हैं। दिस इज आल्सो वेरी कॉस्टली, बट एनीवेज दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल in which the water may be, I mean, we may lose water from canal to the river due to the high permeability of this sandy layer. क्या क्ले में से पास कर सकता है पानी? नो सर। आई मीन, जो क्ले की इतना इतनी खास लो नहीं। परमेबिलिटी है कि उसे कर सकता 100 है सर। ईयर्स कर सकता है, लेकिन बहुत लो परमेबिलिटी है। इसलिए अगर ये पूरी क्ले होती तो हमें कोई केयर ना होती, बिकॉज वी नो कि क्ले की परमेबिलिटी बहुत लो है। ओके, बट अगर सैंड है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर। ओके, सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल। सो आई होप के यू हैव सम आइडिया के सॉइल की परमेबिलिटी डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई हैव गिवन यू 3 एग्जांपल। वन एग्जांपल इज ऑफ earthfill embankment dam. The second example is of the excavation and dewatering system. The third example was of canal and river and the presence of the highly impermeable clay, but a seam of 0.5 meter of sandy silty seam which will allow the water loss. Okay, this is another example.
So I believe that you understand the basics of permeability as well as its importance, that why we need to study this permeability topic. Okay, so now let's talk about Bernoulli's equation, because the flow of the water is very much the subject of the Bernoulli's theorem. uh, कोई बताएगा कि बर्नौलीज थ्योरम एक्चुअली है क्या? क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। कौन से थ्री टर्म्स हैं बर्नौलीज थ्योरम में? कोई एक स्टूडेंट पहले मतलब बोले सिर्फ। ओके। सर मैं ये बताऊं, यस। sum of pressure head, velocity head, and potential head are always constant. Okay, very good. So there are three type of the heads. Okay, so the total head at any point in water by the Bernoulli's और वाटर मोशन के अंदर होना चाहिए, मूविंग वाटर होना चाहिए, राइट, इज बेसिकली द summation of pressure, velocity and elevation head or the potential head. Okay, so this is basically the pressure head, this is velocity head and this is the elevation head. अब क्योंकि सॉइल के अंदर जो है बहुत स्लो होता है पैसेज, चाहे वो सैंड हो, ग्रेवल हो, या क्या उसे कहते हैं क्ले हो, लेकिन वेलोसिटी बहुत लो होती है, इसलिए वी डू नॉट कंसीडर द वेलोसिटी हेड इन सॉइल मैकेनिक्स। एंड रीजन क्या है उसकी? क्योंकि वेलोसिटी एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, इसलिए वी इग्नोर दिस कंपोनेंट। तो जो रिमेनिंग हेड्स हैं बाय बर्नौलीज थ्योरम इन फॉर द सॉइल, वो रह जाते हैं प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि हमारी assumption जो है, वी विल नॉट talk about the velocity head when we say about the Bernoulli's equation for the water. इसका ये मतलब नहीं है velocity head है, लेकिन वो इतना small है कि there is no need to consider that. So let us take an example. और अगर आप इसके अंदर देखें कि क्रॉस सेक्शन है सॉइल का, दिस इज बेसिकली द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल, ओके, दैट वी हैव सिलेक्टेड, और it has so we installed one piezometer or the tube, open stand tube at this location and one at this location. Okay, and both the tubes are basically located at distance L, जो हमने उसमें piezometer install किए हैं, okay, at A point and at B point. So the head at A point is HA and head at the B point is H subscript B. And the difference of the head between A and B is delta H. So I hope this is very much simple to explain, okay? So the total head at A, I already told you that for soil, we do not consider the what we call is the velocity head. So we only consider the water pressure head plus what we call is the elevation head. So because in soil the pressure is a pore water pressure, और pore water pressure जो होता है soil का, उसे हम U से represent करते हैं, और ये आपको पता है कि gamma W is the unit weight of the water and Z is the elevation head. Similarly, head at B is again the pressure head, water pressure head plus the elevation head. Okay, so if you want to calculate the difference, then you have to deduct h a minus hb, that will be the difference of the head. So delta h is ha minus hb. Okay, now you can see that there is a slope क्योंकि अगर ये नहीं होगी स्लोप, तो फिर तो हमारे पास पीजोमीटर ए और पीजोमीटर बी के ऊपर आ ही नहीं सकता जो डिफरेंस है, ओके। सो डेल्टा एच इज बेसिकली द हेड लॉस बिटवीन ए एंड बी, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पीजोमीटर जो या ओपन स्टैंड पाइप जो आपने इंस्टॉल किए हैं, times hydraulic gradient. This is extremely important definition. Hydraulic gradient is basically the ratio of the pressure head और वो दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जहां पे आप प्रेशर हेड मेजर कर रहे हैं, इसकी रेशियो को हम कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सो ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, इसकी बिना पे हमने पूरी आगे सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़नी है। जैसे आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सॉरी सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम में कभी नहीं भूलता
इसी तरह आपने कभी भी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन नहीं बोलनी कि इट इज अ रेशियो ऑफ the loss of the head between 2 points to the distance between the point where you measure the what we call is the head, or where you measure the total head. ओके, सो कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है क्या? सॉरी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी नहीं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आए मेहरान? Yes, sir. So can you please revise to your fellows what is hydraulic gradient? ये पूरी स्लाइड आप रिवाइज कर सकते हैं? सर इसमें हमने सॉइल के क्रॉस सेक्शन पे सर 2 पॉइंट्स लिए। गुड। उसमें हमने एक पॉइंट पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई किया हेड फॉर्म वाला, फिर दूसरे पॉइंट पे अप्लाई किया, फिर उनका डिफरेंस लिया। अब उनसे जो ठीक है। डिफरेंस आएगा वो ले लेंगे, और जितना हमने 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस लिया है उस पर डिवाइड कर देंगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा। ओके, और ये आपने कभी भी नहीं भूलना अपनी लाइफ के अंदर। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है? सो आई होप कि आप सबको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की मैथमेटिकल और फिजिकल डेफिनेशन पता चल गई है, क्योंकि जो सीपेज होगा या जो परमेबिलिटी होगी वो फंक्शन होगी इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई की। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। यस। एक्सक्यूज मी सर। सर ये यस, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ये हमें कैसे पता चलेगा कब मतलब ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मतलब जब परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है ये कि तो मैंने ये डिस्कशन ही नहीं ग्रेडियंट। की। सॉरी, आपका क्या नाम है? मंसूर। मंसूर। मैं तो अभी ये बात ही नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ अभी आपको ये बताया कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट के सॉइल के अंदर ये हाई कब होगा, लो होगा, तो परमेबिलिटी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में वो बात करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको ये समझ होनी चाहिए कि व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आए, ओके? ओके सर, थैंक सर ओके, इसकी गुड। इसका एक्सक्यूज मी सर, ये हाँ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फिजिकल मतलब क्या होता है सर? इसका इफेक्ट नहीं मैं कह रहा, इसका फिजिकल मतलब ये है कि 2 पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ टोटल हेड और जो उनके दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उन दोनों की ये रेशो है। और इसके फिजिकल मीनिंग क्या है ये मैं अगली स्लाइड पे बताने लगा। ओके, सो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर फ्लोज पढ़े होंगे, टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनर फ्लो। सो you understand कि if it is a streamline in aligned with the direction, this is known as a laminar flow, और turbulent flow इस तरह irregular। okay, ये इसकी मतलब एक visual वो है। anyways, this is basically the graph to show you the nature of the variation of velocity। ओके, वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसके साथ सॉइल में से पानी पास करेगा। ये सिर्फ पानी की इट सेल्फ वेलोसिटी नहीं है कि खाली पानी फ्लो कर रहा है, ये कहाँ पे फ्लो हो रहा है पानी? सॉइल के पोर्स में से। और ये है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब जो इधर क्वेश्चन किया एक स्टूडेंट ने, मे बी जिहाद ने और मंसूर ने, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और उसके फिजिकल मीनिंग क्या है। तो अभी फिजिकल मीनिंग हम परमेबिलिटी की टर्म्स में नहीं डिस्कस कर रहे कि ये हाई या लो है, अभी हम वेलोसिटी की टर्म्स में कर रहे हैं। तो अगर आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, द स्पीड विद विच वाटर कैन फ्लो विल इंक्रीज। ओके, सो ग्रेजुअल इंक्रीज इन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अगर यहां से आप देखें जोन 1 जो ये वाला रीजन है, तो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ओके, और इस रेंज के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बट दिस इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, टू ये एक लैमिनर फ्लो होगा, यानी कि जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लो होगा, और अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, एक्सीड करता है इस ट्रांजिशन जोन के बाद, तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है इस तरह। ओके, so at higher hydraulic gradient, flow become turbulent because the speed of the water with which it passes through the pore is faster। okay, so in soils, flow of the water through wide spaces is considered as laminar। हम क्यों कंसीडर करते हैं लैमिनर? कौन बताएगा? थ्रू सॉइल, क्या वजह है इसकी?
मैं पिछली स्लाइड्स पे बता चुका हूँ, क्योंकि जो वेलोसिटी है ना, सीपेज वेलोसिटी जिसके साथ पानी पास करता है थ्रू साइल, वो बड़ी स्लो है, बड़ी लो है। ओके, सो लो वेलोसिटी का मतलब ये है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम है, इसका मतलब ये है कि ये लैमिनर फ्लो है। तो मोस्टली, so velocity with speed with which water can flow through soil is directly proportional to the hydraulic gradient. इसका मतलब है कि अगर आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हाई है तो वो ज्यादा स्पीड के साथ पानी पास करेगा सॉइल में से, अगर लो है तो वो कम स्पीड के साथ पास करेगा। लेकिन ये जो रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं या ग्रेवल्स हैं या कोर्स ग्रेन सॉइल हैं, उनके अंदर इट इज बिलीव्ड कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होता है, क्योंकि उनके अंदर जो स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर है वो हायर होती है। ओके, so this will be more clear to you when we will discuss about the Darcy's law. तो अभी मैंने दो चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं। The velocity with which water can flow through soil is basically highly dependent upon the hydraulic gradient. And what is hydraulic gradient? It is a ratio of the total difference of the head loss between 2 points divided by the distance between those points. Okay, so if there is a low hydraulic gradient, the flow through soil will remains laminar. If it is higher hydraulic gradient, the velocity will be higher and the flow will become turbulent. Any question related to this plot and these conclusions which are written with this plot? ओके मंसूर, क्या आप ये स्लाइड रिवाइज कर सकते हो मेरे लिए? जी सर, इसमें हमने ये पढ़ा कि मतलब जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो है वो फ्लो जो है टर्बुलेंट बन जाएगा, और अगर ओके, वेरी स्लो गुड। वेलोसिटी है तो वो linear होगा फ्लो जो है। Okay, good. So, Jihad, can you tell us के जो सॉइल्स हैं, बेसिकली जो क्लेज हैं, उनके अंदर लैमिनर फ्लो होता है या टर्बुलेंट फ्लो होता है, और जो स्टोन्स हैं या ग्रेवल्स हैं या जो हाईली परमेबल जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स हैं, उनके अंदर किस किस्म का होता है, टर्बुलेंट होता है या लैमिनार होता है फ्लो? सर क्ले के अंदर जो है वो लेमिनर फ्लो होता है, क्योंकि वो जो है पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो और रॉक्स और सैंड और ग्रेवल या कोर्स ग्रेन सैंड जो है उनके अंदर जो है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है सर। ओके, गुड। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जितनी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वाटर थ्रू फ्लोइंग थ्रू सॉइल्स, तो सॉइल इज अ पोरस मीडिया, तो जो फ्लो थ्रू सॉइल जो लॉ फिजिक्स का फॉलो करता है उसको हम डार्सिस लॉ कहते हैं। और ये एक फ्रेंच इंजीनियर ने प्रपोज किया था जिसका नाम डार्सिस था। ओके, हेनरी डार्सी, 1856 में, एंड दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर लॉ। ओके, so it says कि velocity of flow through soil is proportion to the hydraulic gradient, जो हमने पीछे एक प्लॉट डिस्कस किया है। ओके, so V is directly proportional to the I. तो आपको पता है कि अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करना हो तो हम क्या ऐड करते हैं? मंसूर, आप बताएंगे? कोफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट लगेंगे, कांस्टेंट यस, प्रोपोर्शनलिटी ओके कांस्टेंट। ओके, तो वो है के, और ये जो के है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो डार्सीज लॉ, जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ इज वेरी फेमस इन फिजिक्स, तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर डार्सीज लॉ, शायद मैं इवन अपने 80s के अंदर 80 साल का भी हो जाऊं तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि दिस इज V इज इक्वल टू के आई, एंड I इज अ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, K इज द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। और जितना ज्यादा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा उतनी ज्यादा स्पीड से पानी फ्लो करेगा थ्रू सॉइल, एंड दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द हेनरी डार्सिस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ डार्सिस लॉ। बिशारत, आप इसे रिवाइज करोगे कि ये क्या है डार्सिस लॉ? Okay, so anyone else? Waleed Zeib? जी सर। Okay, who is Waleed Zeib? ये आप डार्सिस लॉ हमें बताओ क्या है?
सर इसमें जो है ना डार्सी लॉ में द वेलोसिटी अपलोड थ्रू सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपलोड जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे साथ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वो भी गुड। ज़्यादा होगी मतलब वी में अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आई भी इंक्रीज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन के जो है ना सर वो ओके, कांस्टेंट है। ठीक है। तो वलीद आप ये बताओ, ये आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? हम्म, ओके, सो जी जी। सर वो सर आई जो है ना सर हमारे साथ स्लोप ऑफ वाटर टेबल आर that is the change in water level per unit of distance along the direction of maximum heat degrees. ओके, बट इट्स नॉट राइट। कोई और बताना चाहेगा अदर देन मेहरान? फहद, क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? सर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सर रेशो है जो हमारे पास हेड लॉस आता है और जो उन दो पॉइंट्स के दरमियान जितना लेंथ होता है उनका रेशो है सर। डिस्टेंस, वेरी गुड। ओके, और ये फहद बताओ कि ये के क्या है? के सर कांस्टेंट है इसे हम कोफिशिएंट हाइड्रोलिक ऑफ कंडक्टिविटी। परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ओके, सो ओके, यू कैन क्लोज योर माइक। मेहरान, आप बताओगे कि आपने कोई प्रैक्टिकल किए हैं ये के कैलकुलेट करने के? कि ये सर हमने किए हुए इस पे। हाँ, ओके, गुड। All right, so I already told you that V is the velocity with which water flow through soil, okay, and we call this velocity as a discharge velocity, okay, and K is the coefficient of hydraulic conductivity, and the physical meaning of this word is that कि अगर K की वैल्यू जो है वो बताती है कि कितना कोई मीडियम परमेबल है, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये बताता है कि कितना ज्यादा हेड है जो उसको अलाउ करेगा क्विकली पास करने में। ओके, सो दीज आर द फिजिकल मीनिंग ऑफ वी के आई। एनीवेज, सो अब जब पानी किसी एरिया में से फ्लो करेगा, अगर हमें उसकी वेलोसिटी पता हो तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितनी क्वांटिटी पास की है, तो इसको हम क्या कहते हैं मेहरान? क्वांटिटी सर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे वेलोसिटी पता है, मुझे एरिया पता है, एंड आई वांटेड टू नो कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना पानी फ्लो किया है, तो इसको क्या कहते हैं फिजिकली, जो फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्चार्ज में से या डिफाइन करें। डिस्चार्ज डिस्चार्ज। कहते हैं। वेरी गुड। ओके, सो द क्वांटिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द सॉइल पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्चार्ज। एंड आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी होगी, क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? मेहरान, आपने नहीं बताना, कौन बताना चाहेगा? जिहाद ने भी नहीं बताना, मंसूर ने भी नहीं, जो बोल चुके हैं उनमें नहीं कोई नया स्टूडेंट? एनीवन? कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स? So A1 V1 is equal to A2 V2. Q is equal to ओके, ओके, गुड। सो यू आर अमार, राइट? Hassan. आपका नाम क्या है? Hassan. क्या नाम है? Hassan. Hassan. Okay, Hassan, thank you. So Hassan said Q is equal to A1 AV is A1 V1 is equal to A2 V2, एक क्रॉस सेक्शन पे दूसरे क्रॉस सेक्शन पे डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, एनीवेज, सो Q is equal to AV, आपको पता है कि ये आपने पढ़ा हुआ है फ्लूइड में, आई डोंट नीड टू टेल। ओके, सो V क्या है? इज बेसिकली द velocity of the water through soil, and we define this using Darcy's law, which is equal to K into I. So इसका मतलब है कि अगर हमने quantity of the water flowing through soil calculate करनी है, तो this is equal to K is the coefficient of the permeability of the soil multiplied by I hydraulic gradient multiplied by the cross section through which water is passing. Okay, so this is how we basically take care of if we want to calculate for the excavation, we want to know how much water will seep in how many years through the dam body. So this is based on this simple formula. Any question related to this Darcy's law?
Okay, so I yes. सर इससे पहले हमने जो बर्नौली इक्वेशन में वो वेलोसिटी जीरो पुट की थी, ये और जी वो जी, वेलोसिटी से। नहीं नहीं, ये तो कोई ना कोई तो वेलोसिटी है, ये डिस्चार्ज वेलोसिटी है, और वहां पे तो वो वेलोसिटी हेड है जिसकी स्पीड के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी हेड होगा उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है मेहरान? तो उसमें सर हम किसकी वेलोसिटी लेते? वो तो अच्छा, ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि पानी फ्लो कर रहा है विद द फ्री बोर्ड, यानी कि वो साइल से नहीं फ्लो कर रहा, तो तब उसकी बहुत क्विकली पानी फ्लो कर रहा है, तो तब उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी, तो वहां पे हम उसका हेड लेंगे बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर। ये डिस्चार्ज वेलोसिटी है जो डिपेंड करती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के ऊपर। वो जो वेलोसिटी है बर्नौलीज लॉ के ऊपर, वो तो एक स्पीड के उसके ऊपर डिपेंड करती है, v²/2g ग्रेविटी के ऊपर। राइट? गलत तो नहीं मैं कह रहा मेहरान? ये सर। जैसे ग्रेविटी तो साइल के अंदर है, लेकिन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है? जो बर्नौलीज थ्योरम से हम डिफरेंस लेते हैं डिवाइडेड, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ओवर हियर। वहां पे जो वेलोसिटी आई थिंक इन बर्नौलीज यू मे चेक, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द ग्रेविटी, v²/2g, but I'm not that much sure, but I believe के you can differentiate. Okay, ठीक है मेहरान? ओके सर। Okay, good. So this is another practical example, ये मैं already explain कर चुका हूँ। ये आप imagine करें कि क्रॉस सेक्शन है किसी लैंड का, जहाँ पे एक हाई वाटर टेबल के ऊपर स्ट्रीम या रिवर फ्लो कर रहा है, लो वाटर टेबल के ऊपर एक रिवर या स्ट्रीम फ्लो कर रही है। तो ये जो कलर है ये शो कर रहा है परवियस सॉइल। इम्परवियस सॉइल का मतलब ये है कि ये क्ले है और इसकी बहुत लो परमेबिलिटी है। तो यहाँ पे भी क्ले है, इधर भी क्ले है। ओके, सो इट मींस कि वी डोंट वरी अबाउट द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ओके, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक परवस लेयर है, और परवस लेयर की एग्जांपल ग्रेवल हो सकता है, सैंड हो सकती है, सैंड विद सिल्ट हो सकती है। तो यू कैन सी के आपने अगर प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में यहाँ से कितना पानी, तो आप यहाँ पे हेड डिफरेंस डेटम से मैयर कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ओके, यू मे हैव स्टडीड सर्वेइंग, सर्वेइंग आपने पढ़ी है, मीन सी लेवल डेटम यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड। ओके, और जाके आप इसका बॉटम ले सकते हैं वहां पे ए, और आप उसका प्रेशर हेड या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सॉरी, एलिवेशन हेड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा पोर वाटर प्रेशर का हेड कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे आपके पास टोटल हेड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास टोटल हेड आ जाएगा। दोनों का आप डिफरेंस करके अगर एल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। अगर आप इसको किसी क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है यहाँ का एरिया, फॉर एग्जांपल इस एरिया जिससे वो पानी सीप कर रहा है सैंड का, उसकी जो परपेंडिकुलर डेप्थ है, थिकनेस है, उसको आप 1 मीटर आउट ऑफ प्लेन मल्टीप्लाई करके जो एरिया कैलकुलेट करेंगे क्रॉस सेक्शन, उससे मल्टीप्लाई कर दें और डार्सीज लॉ से आप, तो यू कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज। और आई की जगह सो के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, ये आपने फॉलिंग हेड और कांस्टेंट हेड से लैब में कैलकुलेट किया है सॉइल मैकेनिक्स की। तो ये वैल्यू आप यहाँ से सॉइल का सैंपल लेके जाएंगे। एक सैंपल सपोज मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर वो मैं जीआईके की लैब में ले आया, फिर मैंने फॉलिंग हेड या कांस्टेंट हेड किया डिपेंडिंग अपॉन कि ये कौन सी टाइप है सॉइल की। ओके, और के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और ए की वैल्यू, आई की वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की? मैंने वहां पे जाके सर्वे किया, सो आई नो द एलिवेशन, द रिड्यूस लेवल ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट्स। ओके, एंड ए क्रॉस सेक्शन बाय बोरिंग वी अंडरस्टैंड कि ये लेयर की थिकनेस कितनी है, हमने वहां पे बोरिंग की और हमने वो मेजर कर ली। सो प्रैक्टिकली आई कैन कैलकुलेट कि हाउ मच वाटर विल बी I mean will flow from point A to point B because of the highly permeable seam or the layer of the pervious soil between point A and B। तो ये किसी को प्रैक्टिकली समझ आया कि ये कैसे पॉसिबल है कैलकुलेट करना? एनीवन जो बताना चाहे, रिवाइज करना चाहे? Okay, let me repeat it again.
आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि दो डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है ना दो स्ट्रीम्स जो हैं वो फ्लो कर रही हैं, एंड यू वांटेड टू नो कि कितना पानी ये ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर फ्लो करेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बोरिंग की, फिर आपने ये प्रोफाइल डेवलप कर ली, उसके बाद आपने सर्वेइंग करने के बाद रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर ली। जब आपको पास रिड्यूस लेवल एंड यू नो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो यू कैन कैलकुलेट प्रैक्टिकली आई, which is the hydraulic gradient. Know how much water will flow is a Q discharge, which is equal to A into V. सो ए क्रॉस सेक्शन एरिया है जो ये परवस लेयर है सॉइल की या सैंड की, इसका ये वाला। ओके, सो यू कैन कैलकुलेट दिस। और जो v है वो आप डार्सीज लॉ यूज करेंगे। डार्सीज लॉ इज a मल्टीप्लाइड बाय ये a उसी तरह आ जाएगा q वाला, और डार्सीज लॉ है k टाइम्स hydraulic gradient. Okay, so a into coefficient of permeability. Coefficient of permeability I already told you कि आप लैब के अंदर सैंपल ले आएंगे और वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, और I की जगह आप ले आएंगे delta H, head total head difference between point A and B and the distance between both the points. So this is how you can calculate कि how much water will flow from point A to point B. Any question related to this slide? एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर इसमें हमारे पास जो है मतलब सैंडी सॉइल है ना, अगर ये दरमियान तक होता और उसके बाद जो है ना वो क्ले होता, तो फिर मतलब इसका मतलब है कि परमेबिलिटी फिर नहीं होती या कम होती बहुत। आप ये कह रहे हो कि हाफ यहाँ से आगे क्ले होती, राइट? ये कह रहे हो आप? यस सर। तो फिर शायद हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़ती। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम कि हमारे पास साइट कैसी है, हमारा पर्पस क्या है। लेकिन मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है मंसूर? ओके सर। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या है कि आई वांटेड टू नो कि हाउ मच वाटर विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है मंसूर? यस सर, थैंक यू। ओके, all right. So after knowing this, there are two velocities that you need to differentiate जो आपने कभी भी नहीं भूलनी। One is the seepage velocity and second one is the discharge velocity. So I believe कि you understand कि discharge velocity is basically जो gross area है soil का, जिसमें voids भी हैं और solid भी हैं, वहां से जो पानी flow करने की velocity है उसे हम कहते हैं discharge velocity. Okay. लेकिन अगर हम सो यू ऑलरेडी नो के डिस्चार्ज वेलोसिटी जो है इज बेसिकली इक्वल टू k into I using the Darcy's law, and if you wanted to know how to practically calculate, तो you know the discharge, आप किसी एक पॉइंट के ऊपर डिस्चार्ज मेजर कर लें, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दें, तो आपको वेलोसिटी भी आ जाएगी, डिस्चार्ज वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं सॉइल को अज्यूम कर लूं थ्योरेटिकली कि ये सॉलिड है और ये वाइड्स हैं, ये सॉलिड्स हैं और ये वाइड्स हैं, तो अगर पानी सिर्फ मैं कहूं कि वाइड्स में से फ्लो कर रहा है, ए वी एरिया ऑफ वाइड में से फ्लो कर रहा है, जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है वो फ्लो करती है ए वी प्लस ए एस। इसको हम कहते हैं ग्रॉस एरिया, टोटल एरिया। जो टोटल एरिया सॉइल का वो बराबर होगा area of void plus area of soil. This is known as gross area. Okay, gross area. और अगर मैं ये इन दोनों एरियाज को डिफरेंट कर लूं और मैं कहूं कि सिर्फ पानी फ्लो जो करेगा थ्रू द वाइड्स, तो आई विल कॉल दिस speed of the water flowing through only void as a seepage velocity. So again मैं रिवाइज करता हूँ कि discharge velocity is the velocity or the speed of the water that flow through gross area of the soil. And what is the gross area of the soil? Area of the solid plus area of the void. और जो seepage velocity है ये theoretical velocity है जो हम assume करते हैं कि सिर्फ flow करती है through voids. Okay, let us see. तो क्योंकि voids के दरमियान तो उससे resist नहीं करना पानी को,
लेकिन सॉलिड से कभी वो टकराएगा फिर वाइड को वो ढूंढेगा, ओके सपोज, तो उसको काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो सीपेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू ओनली वाइड इज ऑलवेज हायर देन द discharge velocity, which is basically the velocity of the water flowing through the gross area. अब एक रिलेशनशिप है which is very popular कि the discharge velocity v is equal to n times seepage velocity, and who will tell me what is n? कौन बताएगा? शाबाश मेरा, yes, it is porosity. ओके सो अभी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है बेसिकली, ये कैसे बने v is equal to n, v is a discharge velocity. तो कोई अभी मुझे सबसे पहले ये बताएगा कि what is discharge velocity, what is seepage velocity, and discharge velocity is higher than the seepage velocity, and what is relationship between discharge velocity and the seepage velocity? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? मैं Yes. बताऊंगा सर। ओके कोई एक बताए। यस ओके सर। सर डिस्चार्ज वेलोसिटी जो है ना हमारे पास, सर वाटर की वेलोसिटी जो ग्रॉस एरिया से हो सर, और हमारे और पास ग्रास सीपेज एरिया क्या है? वेलोसिटी सर वो एरिया ऑफ वाइड्स प्लस एरिया ऑफ सॉलिड्स। यस गुड और सर सीपेज वेलोसिटी वो है जो हमारे पास सिर्फ वाइड से फ्लो होती है वो सर। गुड ओके, और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीपेज वेलोसिटी एंड द डिस्चार्ज वेलोसिटी? सर सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी सर। एंड हाउ वी कैन कोरिलेट, अगर हमारे पास सीपेज वेलोसिटी और हमने डिस्चार्ज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो क्या कोरिलेशन है? सर v इज इक्वल टू सर हमारे पास जो है ना सर डिस्चार्ज वेलोसिटी इज इक्वल टू पोरोसिटी और सर इनटू सीपेज वेलोसिटी। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? सर इस्माइल। ओके गुड इस्माइल, थैंक यू। सो लेट अस सी कि ये कैसे पॉसिबल है ना। तो ये एक क्रॉस सेक्शन है, हम सॉइल का एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं ये, ओके सपोज, और इसमें से फ्लो रेट जो है क्यू, यानी कि जो डिस्चार्ज है वो क्यू है, और जो लेंथ है क्रॉस सेक्शन की वो एल है जो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मैं ग्रास एरिया की बात करूं तो वो ये है, और अगर इस ग्रास एरिया को मैं फेज रिलेशनशिप की टर्म्स में लिखूं तो यू एग्री, ऑल ऑफ यू एग्री के इसके अंदर एरिया ऑफ वाइड प्लस एरिया ऑफ सॉलिड होगा। तो आई बिलीव के all of you understand the physical meaning of this particular diagram. Okay, so you know के क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर अगर आप डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द velocity of the fluid multiplied by the cross section area through which it is passing. तो डिस्चार्ज वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई किया है हमने? ग्रॉस एरिया से। लेकिन सीपेज वेलोसिटी को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? एरिया ऑफ द वाइड से। तो these both will be equal as per the equation of the continuity, just we are assuming it, okay? तो उसके बाद हमने ये किया है कि ए की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है कि ए टोटल ए ग्रॉस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द वाइड प्लस एरिया ऑफ द सॉलिड, ओके, एंड दिस विल रिमेन सेम। सो देन सीपेज वेलोसिटी इधर ही रह गई है और हमने ये डिवाइड कर दिया है एरिया ऑफ द वाइड से। सो दिस इज द टर्म, ओके। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एल से और डिवाइड भी करूं तो इट विल नॉट मेक बिग डिफरेंस, ओके। सो डिस्चार्ज वेलोसिटी into volume of the void plus volume of solid divided by volume of void, because area into length will be the volume. अगर अब मैंने n बनाना है तो n की डेफिनेशन क्या है? कौन बताएगा कि पोरोसिटी किस चीज की रेशो है? शाबाश। वॉल्यूम ऑफ void to volume total volume. I think it is volume of वाइड okay, वॉल्यूम ऑफ वाइड Sir, और टोटल वॉल्यूम। volume of voids divided by total volume. ओके 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 ओके, ये है डेफिनेशन। और मुझे बताओ कि वाइड रेशियो की क्या डेफिनेशन है?
Sir, Volume of void divided by volume of solid. Solid. ओके गुड. सो इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को, तो इसका मतलब है मेरे पास ये टर्म बन जाएगी कि 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वो जो मैं कॉमन लूंगा वो इससे आके डिवाइड हो जाएगा. तो मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल आ जाएगा? वाइड रेशो. ओके गुड. सो इसका मतलब है कि सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी इनटू 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय ई, और n is equal to I think e divided by 1 plus e, right? Agreed? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. इसका मतलब है कि मैं ये लिख सकता हूँ कि seepage velocity is equal to discharge velocity divided by n, or discharge velocity is equal to porosity times seepage velocity. So I hope कि every one of you is able to drive this Simon equation. अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ ले. शाबाश. एक्सक्यूज मी सर. सर ये Yes. लास्ट स्टेप जरा रिपीट करें सर. सर ये मेरी लाइट चली गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था. ये जरा बता दें ए बी प्लस ए एस कैसे आया? सॉरी, आप दोबारा पूछें. शाबाश, कोई मसला नहीं. क्या पूछा आपने? सर ये डिस्चार्ज इज इक्वल टू वी ए वी प्लस ए एस कैसे आया, ये बता दें. हाँ, कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? मेहरान. जी सर. ओके, 344 आप बताना चाहते हैं, आप बताएं. ओके मेहरान. सर इसमें वो यस यस, जी बताएं. जो ग्रास क्वेश्चन एरिया के है, पर तो इसलिए हम जो एरिया ऑफ वाइड और एरिया ऑफ सॉइल दोनों लेते हैं इसमें. ओ भाई, अच्छा, क्या आप दोबारा बताओ. अच्छा, मैं बता देता हूँ. जो डिस्चार्ज है वो बराबर है डिस्चार्ज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रास एरिया, और जो सीपेज वेलोसिटी है वो हमेशा सिर्फ एरिया ऑफ वाइड से गुजरती है, इसलिए हम सीपेज वेलोसिटी को एरिया ऑफ वाइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और ए और वी को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज ये डिस्चार्ज की डेफिनेशन है. ये किसने क्वेश्चन किया था जिनकी लाइट चली गई थी? आप अपना यस माइक्रो, आप समझ आइए आपको. यस सर. Okay, so there is some student who want me to repeat the steps. So okay, so first of all, at the gross area I just substituted the value of AV, area of the void plus area of the solid. Okay, और फिर मैंने एरिया ऑफ वाइड को डिवाइड कर दिया. तो जब मैंने डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई. अब मैंने इससे L से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है. तो जब एरिया को मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ से तो इट विल बिकम द वॉल्यूम. सो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. अब मुझे पता है कि वाइड रेशियो की डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ओके, सो इट मींस कि अगर मैं कॉमन ले लूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 1, और मैंने कॉमन क्या लिया है बेसिकली? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ओके, तो वो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. जब मैं इसको ऊपर, आई कैन इवन राइट इट, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जस्ट राइटिंग है. ओके, सो आई नो कि इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? ई. सो माय इक्वेशन विल बिकम डिस्चार्ज वेलोसिटी इनटू वाइड रेशियो प्लस 1 divided by wide ratio. Okay, or I can write this as v divided by n, because I know कि n is equal to
E divided by 1 plus E वाइड रेशो और पोरासिटी के दरमियान कोरिलेशन है. So there was some student who was asking me to repeat. अब आपको क्लियर हुए? Yes, sir. Thank you. Okay, good. So इसका मतलब ये है कि now all of you understand कि what is seepage velocity, what is discharge velocity, and how seepage velocity and discharge velocity are correlated using the concept of the porosity. What is the gross area, what is the air wide area, what is the area of the solid. Okay, and this is extremely important derivation. Okay, I can give it in quiz exam or okay. एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर ये लास्ट स्टेप जरा सर रिपीट करें, भी जो आखिरी में सर आया है V इज इक्वल टू एन वी एस पोरोसिटी, सर वो वाला. Okay, okay. Give me 1 minute, just 1 minute. Okay. Okay. आपका क्वेश्चन क्या है कि ये कैसे आया? यस सर, लास्ट. सर ये लास्ट में सर ये. ओके. सो ये यहाँ तक आपको समझ आ गई है जी सर, कि जी V सर. is equal to V divided by N. So which means कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्चार्ज वेलोसिटी विल बी सीपेज वेलोसिटी टाइम्स N. ओके, ये जस्ट ओके, मल्टीप्लिकेशन. ओके, ठीक है गुड. All right, so let us see कि डार्सीज लॉ, बेसिकली डार्सीज लॉ, ये डॉटेड लाइन है, ये आपको नजर आ रही है ना, दिस इज डार्सीज लॉ. एंड डार्सीज लॉ मींस के वेलोसिटी is directly proportional to the hydraulic gradient and the relationship is linear. और ये बेसिकली जो डार्सीज लॉ था, इसने डार्सीज ने क्लीन सैचुरेटेड सैंड के ऊपर ये काम किया था. तो एक रिसर्चर था, उसका नाम था हांसू. ओके, उसने 1960 में क्या किया कि 4 क्ले के सैंपल कलेक्ट किए साइट में से अनडिस्टर्ब, मींस के सैंपल्स इंटैक्ट थे, उनका मॉइस्चर कंटेंट, उनका फैब्रिक्स कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ था, उसको हम अनडिस्टर्ब सैंपल कहते हैं. अगर मैं क्ले का सैंपल कलेक्ट करूं और उसका मॉइस्चर कंटेंट, उसका फैब्रिक, उसका स्ट्रक्चर वो इंटैक्ट रहे, वो चेंज ना हो, तो वी कॉल सच सैंपल एज अनडिस्टर्ब सैंपल्स. ओके, सो हांसो 1960 में उसने क्या किया कि उसने 4 क्ले के सैंपल लिए और उसने ये वाला जो है ना वो ग्राफ प्लॉट किया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और डिस्चार्ज वेलोसिटी का. तो उसने कहा कि डार्सीज लॉ क्ले के ऊपर नहीं लगता. ये वाला. ओके, गिव मी 1 मिनट. सो ये वाला प्लॉट है जो ये नजर आ रहा है आपको. तो उसने कहा ये जो इनिशियल पोर्शन है ना कर्व का एट द लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये नॉन लीनियर है. यस, आफ्टर आई डैश ये फॉलो करता है लीनियर कोरिलेशन को. ओके, सो उसने एक नई इक्वेशन प्रपोज कर दी कि v इज इक्वल टू के आई माइनस आई नॉट. आई नॉट ये है, आई ये है, यू डोंट नीड टू गेट वरीड कि ये क्या है. ओके, और फिर उसने कोफिशिएंट m भी दे दिया और फिर उसने कहा कि एट लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो ये लो वैल्यूज हैं, ये वाली जो रेंज है, ओके, दिस रेंज, ऑलराइट, इसके ऊपर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. और उसने m की वैल्यू प्रपोज कर दी एट हायर 1.5 फॉर द स्वीडिश क्ले. तो उसने कहा कि डार्सीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि उसने एक कंट्रोवर्सी जो है ना वो एस्टेब्लिश कर दी. लेकिन उसके बाद एक मिचेल विच इज वेरी फेमस रिसर्च इन सॉइल मैकेनिक्स, उसने 1976 में प्रूव किया कि हांसो की फाइंडिंग्स जो हैं वो ठीक नहीं है और डार्सीज लॉ एप्लीकेबल होता है तमाम तरह की साइल के ऊपर. और हम जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स हैं वो डार्सीज लॉ को यूज करते हैं वाइडली टू स्टडी द सीपेज कंडीशन. ये स्लाइड जस्ट आपको इट वाज अ काइंड ऑफ रिसर्च दैट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट के how Darcy's proposed his law, and then Hanso basically collected 4 clay samples and plotted the relationship between hydraulic gradient and discharge velocity, and he said that okay, at the low hydraulic gradient there is a non-linear relationship, that's why Darcy's law is not applicable.
So but Mitchell 1976, after 16 year of the Hanso research, said that his findings are not right and the Darcy's law is widely applicable to the soil. But if I conclude this particular narrative, तो हम as an engineering practitioner we use Darcy's law in soil mechanics. Okay, any question related to this slide? फहद आप repeat करोगे ये slide? जी सर। सर हमारे पास सर अभी तक हमने डार्सिस लॉ स्टडी कर लिया जो कि हमें वेलोसिटी की रिलेशन देता है और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के साथ डिस्चार्ज और ये डिस्चार्ज वेलोसिटी। रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट लाइन, लीनियर है। जी सर वो लीनियर है। तो सर हांसू ने फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बिना पर उसने कहा कि जो क्ले सॉइल है उसके लिए फिर ये रिलायबल नहीं होता क्योंकि ये कर्व हो गई है, ये लीनियर नहीं रहती नॉन और फिर लीनियर होगी। नॉन लीनियर होती है सर। तो फिर बाद में उसने सर वो कर दिया कि उसकी फाइंडिंग सही नहीं है और हम डार्सीज लॉ किसने को किया? फॉलो कर सकते हैं। किसने किया बाद में? सर उस मिचेल। मिचेल ने मिचेल। सर, मिचेल ने। Okay, thank you, Fad. So I hope this is clear to you. Okay, so we will continue the rest of lecture in our next class. Okay, I think this is enough for today. Any question? सर वैसे ये अगर ग्रेडियंट जो है वो स्मॉल होता है इस ग्रेडियंट की वैल्यू, तो फिर वेलोसिटी तो इंक्रीज नहीं हो सकता सर। अगर लेट्स सपोज अगर ग्रेडियंट की वैल्यू जो है स्मॉल होते होते जो है एक फ्लैट सरफेस होता है, तो वहाँ पर तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज तो नहीं हो सकता सर। मैंने कहा कि जो डार्सीज लॉ है वो कहता है कि जितनी वेलोसिटी है ना और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शंस हैं, ठीक है। और हांसो ये कह रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। अगर आप वो देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी, लेकिन अगर आप इसकी स्लोप देखेंगे तो दे आर बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये जो हांसो की कर्व है वो नॉन लीनियर है, ठीक है। तो ये वो डिस्कशन थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की ये वैल्यू है कोई 1% है तो वेलोसिटी 1% है। नो, आई डोंट नो, दीज आर द ट्रेंड्स। ओके, क्या नाम है? जिहाद नाम है ना आपका? जिहाद। जी सर, जी सर, जी सर। आपको इसकी थीम समझ आई है? पता नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं एनीवेज समझ आया, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं जिहाद, ठीक है। जी सर समझ आ गया सर, समझ आ गया। और कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक असाइनमेंट के रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है। आपने सर उसमें दिया था कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए आप एक इक्विपमेंट रिकमेंड करें फील्ड कंपैक्शन के लिए। तो उसमें जी जी हमें सीफ नंबर 200 स्पेसिफाइड नहीं था, तो दो उसमें बनती हैं, शीप्स फुट रोलर्स और रबर टायर रोलर्स। तो ऐसे केस में हम दोनों लिख दें? यस, यही जो आपने मुझे बात बताई है ना, गुड इंजीनियर ऑलवेज गो फॉर एन आर्गुमेंट। तो आपने यही लिखना है कि वी आर ओनली गिवन अबाउट द क्लेज एंड वी आर नॉट गिवन फर्दर। वो आपने लिखनी है, यही है। सो इट इज पॉसिबल कि इधर ये है या ये है, ठीक है ना। क्या नाम है ओके आपका? अहमद। ओके अहमद, ये जो आपने मुझसे बात की है ना, ये आपने लिखना है उसमें आंसर। ओके। ओके गुड। एनी एनी अदर क्वेश्चन? इन हमने तो सर वही लिखा है, सिर्फ शीप फुट रोलर सर। जी सर एक ही लिखा है सर, मैंने जी। सबमिट कर दिया सर। Okay, good, good. So Bisharat, I think he has not attended today lecture. Anyways, he can see the recording. So if there is any question, please send me on Teams. I'm very happy to receive your queries. Okay, and try to finish my all lectures. For example, if I have delivered you lecture right now, you should not, I mean, go outside. You should finish it. Okay, and you should prepare it. And if you make it 1 week late, it means that you are generating a lot of problem for you. And I really want every one of you to score very good grades in my subject. Okay, ओके मेहरान, सर। ये समझ आया पूरा लेक्चर को क्वेश्चन? यस सर, समझ आया सर। Okay, good.
So I think we can. मेरा Yes. क्वेश्चन है सर कि अगर हांसू ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ डिड्यूस कर दिया कि ये चीज ऐसी होती है, तो फिर वो बाद में गलत क्यों हो गई? This is a very genuine question, and I'm very happy to receive such question because I thought someone of you may ask me. मैंने ये जो डिस्कशन आपको दिखाई है, ये मैंने बीएम दास की बुक से जो है ना, इन मतलब बारो की ये चीजें स्लाइड के अंदर. So the best way is कि फहद, आई कैन सेंड यू द हांसू पेपर एंड द मिचेल पेपर, ओके, जो उनकी अपने पेपर्स हैं, क्योंकि आपने फॉलिंग हेड और कांस्टेंट हेड दोनों कर लिए एक्सपेरिमेंट. सो आई बिलीव कि आप वो दोनों पेपर पढ़ो, उसकी फाइंडिंग को अंडरस्टैंड करो, और फिर वी विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. और इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू एक्सप्लेन यू. अब समझ आइए आपको क्या नाम है कि कैसे पता चलेगा कि क्यों रिजेक्ट हुई. ये तो कंक्लूजन है, लेकिन कैसे रिजेक्शन हुई उसके पीछे पूरी डिबेट है. लेकिन वो मैं क्लास में प्रेजेंट नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव टू गिव यू अ मिनिमम नॉलेज. और you can study it. I will send you the paper, or then I can ask you, I can make you prepare one slide, two slides, or then you can share it with your class. ठीक है फहद? सही है सर, थैंक यू सर. Okay, good. So I mean, we can, I mean, end this lecture, and have a good day. Take care.